ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں ہم حاضر آئے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس کون غوث پاک؟ یہ غوث اعظم وہ ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ غوث پاک وہ ہیں کہ جب 4 سال کی عمر میں استاد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اے عبد القادر بسم اللہ پڑھو، کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک کے استاد فرما رہے ہیں، عمر 4 سال کی ہے، کہا بسم اللہ پڑھو، پڑھا دیا، استاد نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبد القادر جیلانی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد خاموش ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، استاد خاموش ہوئے، مگر عبد القادر جیلانی خاموش نہیں ہوتے ہیں، عبد القادر جیلانی پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پہلا پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ، اسی طرح 18 پاروں کو مکمل پڑھ کے شیخ عبد القادر جیلانی رکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ بچہ جو ابھی 4 سال کا ہے، بسم اللہ پڑھنے آیا ہے، 18 پاروں کو مکمل پڑھنے کے بعد عبد القادر جیلانی ٹھہر جاتے ہیں، استاد حیرت میں ہیں اور حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی یہ 18 پارے کیسے یاد ہو گئے؟ ابھی تو تم بسم اللہ پڑھنے آئے ہو، بسم اللہ کے بعد میں تمہیں الف پڑھاتا، با پڑھاتا، اس کے بعد تم آگے بڑھتے، یہ کیسے یاد ہو گئے؟ عبد القادر جیلانی کی شان دیکھو، میرا غوث فرماتا ہے جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں 18 پاروں کو روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی ان کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت مدرسہ فیضان حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرامت غوث اعظم ہے کہ میرا غوث ماں کے پیٹ میں ہے مگر باہر کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ جان رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، جو غوث ماں کے شکم میں ہونے کے باوجود دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہو، یقیناً اگرچہ اس کا مزار مقدس بغداد معلیٰ میں ہے مگر آج مدرسہ فیضان حضور میں ہونے والے جشن غوث الورا کو وہ وہیں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور عاشق کے دل میں کیا ہے میرا غوث ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آئیے سیرت غوث اعظم دیکھیے، یہ کون غوث پاک ہے؟ یہ وہ غوث اعظم ہے جو فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گائے کا پیغام دیا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے غوث ہیں۔ آج ہم تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر ہم مضبوطی سے پکڑے ہی کب ہے جو چھوڑیں گے؟ ارے غوث کا دامن یہ ہے کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں۔ غوث کا دامن یہ ہے ہمارے مرد بھی نمازی ہو، ہماری عورتیں بھی نمازی ہو، بچے بھی نمازی ہو، بوڑھے بھی نمازی ہو۔ نہ تو مرد نماز پڑھتے ہیں، وہ بہانہ ملا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کام ہی بہت ہے، ہمیں بچوں کی پرورش سے فرصت نہیں۔ ہماری خواتین حضرات اور ماں اور بہنوں کے پاس بھی اچھے بہانے ہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال لیں، ہمارا للہ ہماری گود میں رہتا ہے، کبھی وہ یہ کر دیتا ہے کبھی وہ کر دیتا ہے، اپنا پاک ہو جاتے ہیں، بتائیے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ارے سب اب تم اور تمہارے بچوں کی کوئی اہمیت نہیں ان لال کے سامنے جو سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، حسن و حسین کے سامنے۔ حسن و حسین دنیا کی وہ تو عظیم ہستی ہیں، ساری دنیا کے ماؤں کو بیٹوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور حسن و حسین کو ایک پلے میں رکھا جائے، خدا کی قسم حسن و حسین کا پلہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر سیدہ فاطمہ ہے جن کے بیٹے حسن ہیں، جن کے بیٹے حسین ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، حسین کے تو بچپن کا عالم بھی تھا، وہ بچپنے میں بھی رہے ہیں، مگر کبھی نہیں کہا میرے ہاتھ پاؤں گندے ہو گئے میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ سیدہ فاطمہ یہ عرض کرتی ہیں، راتوں رات عبادت میں رہتی ہیں، دنوں رات عبادت کرتی ہیں، کبھی بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی۔ ارے نماز تو نماز ہے۔ سیدہ فاطمہ راتوں رات کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ تیری عبادت دل کھول کر چلنا چاہتی ہے، اے مولا تو نے آج تک کوئی ایسی رات نہ بنائی جس میں سیدہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے، اے میرے مولا ایک رات ایسی بنا دے جس میں تیرے محبوب کی بندی تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر تیری عبادت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور تو کریں کون سے غوث پاک کی آپ شان سننے کے لیے آئے ہیں؟ صرف جھوٹے ہم دعوے کرتے ہیں، یہ وہ غوث اعظم
आजम हैं जो फरमाते हैं मैं ने 15 साल तक रात में एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा है। 15 साल तक। आज हम कुरान से दूर हैं। हमने कुरान को रातों में कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है, दिन पर कुरान के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है। उसका नतीजा तुम देख रहे हो। हमने कुरान पर अमल करना छोड़ा, हमने शरीयत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया। हमारे मुकद्दस कुरान पर अंगुश नुमाई हो रही है, हमारे कुरान को झूठा कहा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुरान मुकद्दस के खिलाफ ज़बान कि ये कुरान कुरान नहीं, ये अल्लाह की किताब नहीं। खुदा की कसम, वो जालिम, वो झूठ बोलने वाला गद्दार, उसकी ज़बान में अल्लाह कीड़े पड़ जाए, वो बंदर की मौत मरे, वो कुत्ते की मौत मरे। वो कहने वाला कि कुरान झूठा है, कुरान झूठा नहीं, खुदा की कसम वो कहने वाला गद्दार है, वो मलऊन झूठा है। ये कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसी इस्लाम को नेस्त नाबूद करने के लिए आज ही से नहीं, मैं उस जालिम को बताना चाहता हूँ, अरे जालिम, तू तो आज कुरान पर उंगली उठा रहा है। ये जब कुरान के मानने वाले 313 थे बदर के मैदान में, मगर कुरान का कुछ बिगाड़ न सके। इसी कुरान को मिटाने के लिए जंग उहद कायम हुई, मगर जंग उहद में भी कुरान को मिटाया न जा सका। खैबर में कुरान को मिटाने की कोशिश की, कुरान मिटाया न जा सका। मेरे दोस्तों, करबला की सरजमीन पर उधर 72 है, उधर 72 है, और उधर जालिम सिपाहियों का लश्कर 22,000 का है। 22,000 72 के मुकाबले में आते हैं, मगर करबला की जमीन पर कुरान को मिटा न सके। ऐ वसीम रज़वी कुत्ते, सुन ले, अरे जिस कुरान को बदर की सरजमीन पर मिटाया न जा सका, जिस कुरान को उहद में मिटाया न जा सका, जिस कुरान को मक्के में मिटाया न जा सका, जिस कुरान को मदीने की ताकतें मिटा न सकी, जिस कुरान को यजीदियत ताकतें मिटा न सकी, अरे जालिम, चंद पैसों के लालच में बिकने वाले जालिम, इख्तियार की कुर्सी को हासिल करने वाले जलील और नज़ीर, सुन ले, मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आगा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, कुरान मुक़द्दस पर उंगली, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर उंगली, हमारे रसूल कायनात पर उंगली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे ईमान मुर्दा हो चुके हैं, हमारे ज़मीर कुचले जा चुके हैं, हम ऐसे मुर्दा हो गए कि हमारी ज़बानें तक नहीं खुल रही, किसी का कलम नहीं उठ रहा, किसी की ज़बानें खुलती हुई नजर नहीं आ रही। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रसूल आज़म जैसी मुक़द्दस हस्ती पर ऐसी ज़बान दराज़ी, अरे जरा गौर तो करो, इस इस्लाम को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फैलाया कैसे है, कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। जरा ताइफ का एक वाकया पढ़ के तो देखो, मेरे नबी जब ताइफ की सरजमीन पर जाते हैं, ये इस्लाम आसानी से नहीं मिला, ताइफ पे नबी जाते हैं, क्या होता है नबी के साथ? वो अजीम हस्ती, उस अजीम हस्ती को पत्थरों से मारा जाता है, नबी कौनैन को लहूलुहान किया गया, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ए अल्लाह, ये इस्लाम के गद्दार और इस्लाम को मिटाने और रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करने वालों को नेस्त नाबूद कर दे। ऐ मेरे मौला, इन्हें फिरौनी मौत अता कर दे, नमरूदी मौत अता कर दे। ऐ मौला, वक्त का फिरौन और वक्त का नमरूद आज इस्लाम पर उंगली उठा रहा है, ऐ मौला परवरदिगार इसको नेस्त नाबूद कर दे। ऐसा कौन सा मुसलमान है अगर उसके दिल में रसूल आज़म की मोहब्बत होगी, अपने महबूब और रसूल कायनात की गुस्ताखी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मगर खुले लफ्जों में रसूल कायनात की आज गुस्ताखी की जा रही है। तो कुरान से फिर भी दूर हो, तुम कुरान की तिलावत फिर भी नहीं कर रहे, तुम कुरान पाक से फिर भी करीब नहीं हो रहे, न कुरान पढ़ रहे हो, न कुरान पर अमल कर रहे हो, और सीरत गौसे आज़म में आए हो। अरे सीरत गौसे आज़म में आए हुए जिंदगी सुनने मुसलमानों, जरूरत ये है कि तुम कुरान मुक़द्दस की खुद भी तिलावत करो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने पर आमादा करो, और सिर्फ तिलावत ही नहीं करनी है, हमें कुरान के अहकामात पर अमल भी करके दिखाना। बेशक बेशक। गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़े से वक्त में एक दो बातें और बता दूं। गौसे पाक फरमाते 15 साल तक मैंने 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा है, इशा के बाद से फजर तक। ये गौसे आज़म की शान है, सुभान अल्लाह। और अपने आप को कमजोर न समझो, अगर सिर्फ दिल से अपने
यकीन जानो अगरचे वो बगदाद मुअल्ला में उनका मज़ार है, वो अपने मुरीदों की मदद करने के लिए तैयार, सुभान अल्लाह, मदद करने के लिए तैयार है। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, और अगर वो मुझे पुकारे तो मैं वहीं से अपने मुरीद की मदद करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। ये ताकत किसने दी? ये ताकत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ये ताकत अता की। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, आपके जिस्म पर इस तरह से चादर पड़ी हुई है, पढ़ाते पढ़ाते आप ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद अपना हाथ एक चादर के नीचे डालते हैं और थोड़ी देर के बाद हाथ निकालते हैं। जैसे ही आपने हाथ निकाला, आस्तीन से पानी के कतरे टपक रहे हैं जैसा कि भीगा हुआ हाथ हो। बच्चे हैरत में हैं कि मामला क्या है। गौसे आज़म ने हाथ डाला और निकाल लिया, और निकाला तो पूरा हाथ भीगा हुआ, जैसे कि किसी पानी के ड्रम में हाथ डाल दिया हो, पानी की नदी में हाथ डाल दिया हो, टंकी में हाथ डाल दिया हो। इस तरह से पानी टपक 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 रहा था। गौसे पाक के वो मुरीदीन और गौसे आज़म के चाहने वाले और वो शागिर्द उस वक्त कुछ ना पूछ सके, मगर जब वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरने के बाद, एक महीने के तकरीबन 1 महीने के बाद एक काफिला आता है और काफिले के लोग आते हैं और आकर के वो मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमें गौसे आज़म से मिलना है। इत्तेफाक ये है कि जो लोग उस वक्त गौसे पाक की मजलिस में मौजूद थे, उन काफिले वालों की मुलाकात उनसे हो जाती है। जब उनसे मुलाकात हुई, कहा क्या मामला है? उन्होंने कहा हम गौसे पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। कहा किस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हो? वो तमाम के तमाम कहते हैं हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, हम दरिया में सफ़र कर रहे थे, हम किसी कश्ती पर सवार थे, अचानक तूफान उठा, दरिया के भंवर में हमारी कश्ती फंस गई, हमारे नाखुदा ने दम तोड़ दिया और वो कहने लगा अब अपने अल्लाह को याद कर लो, अब हम मर जाएंगे, इस दरिया में गर्क हो जाएंगे। कि अचानक हम में से किसी शख्स ने कहा अरे गौसे आज़म को पुकार के तो देख लो, और हमने एक ज़बान होकर के कहा था या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अभी हम कह ही रहे थे कि दरिया के साहिल पर एक गैबी हाथ नमूदार हुआ, और जैसे ही वो हाथ आया, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ा है और पकड़ के साहिल पर लाके डाल दिया है, और उसके बाद हाथ गायब हो गया। हम समझ गए हो ना हो ये गौसे आज़म की मदद है, ये गौसे आज़म की तरफ से इमदाद है। आप जान लो यहाँ पर बैठे हुए गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, मेरा गौस बगदाद मुअल्ला में जरूर उनका रोज़ा अनवर है, मगर जो गौस अपने मदरसे में बैठकर डूबते समंदर के जहाज को बचाने पर कादिर है, वो हमारा गौस यहाँ के अपने चाहने वालों की इमदाद करने पर भी कादिर है। वो हमारे यहाँ पर इमदाद करने के लिए भी हजरात, हमें इन बुजुर्गों की सीरत से कुछ लेना चाहिए, दर्स सीखना चाहिए। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स अबुल मुजफ्फर बादशाह, अबुल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद कहा कि मैं आपसे अकीदत तो रखता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई करामत दिखा दें, मैं करामत देखना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो करामत देख कर यकीन करते हैं। कहा मैं करामत देखना चाहता हूँ, मुझे कोई करामत दिखा दें। गौसे पाक ने फरमाया क्या देखना चाहता है, बता क्या देखना चाहता है। गौसे आज़म ने जब इतना कहा, अबुल मुजफ्फर बोला इस वक्त सेब का मौसम नहीं है, और यहाँ पूरे बगदाद में सेब का कोई दरख्त भी नहीं है, आप सेब खिलाएं मुझे। आपने हवा में हाथ किया, 2 सेब आ गए, एक सेब खुद लिया और एक उसे दिया। आपने जब अपना सेब काटा, बिल्कुल बेहतरीन सफेद और खुशबूदार सेब निकला। अबुल मुजफ्फर ने काटा तो उसमें कीड़ा निकला। उसने कहा कि हुजूर ये क्या मामला, आपका सेब उम्दा, मेरा सेब कड़वा और कीड़े वाला। सेब दोनों आपने गैब से अता किए, दोनों सेब आपकी करामत, मगर आपका अच्छा मेरा खराब क्यों? आपने फरमाया ए अबुल मुजफ्फर, इस पर अल्लाह के वली का हाथ लगा है, और ये जो सेब मैंने तुझे दिया है वो सेब भी अच्छा था, मगर इस पर जालिम का हाथ लग गया है। जब जालिम का किसी चीज पर हाथ लग जाता है तो वो चीज खराब हो जाती है। लिहाजा ये गौसे आज़म की करामत हमें बता रही है, हमें जुल्म से बचना होगा। अगर अपने कब्र को बेहतर बनाना है, जुल्म से बचना होगा। कब्र के कीड़ों को दूर करना है, जुल्म से बचना होगा। महशर की गर्मी से हमें बचना है तो जुल्म
से बचना होगा। अगर हमें कब्र की तंगी से बचना है तो जुल्म से अपने आप को बचाना होगा। अगर सही माना में हम गौसे पाक के दीवाने हैं तो यकीनन नमाज के पढ़ने वाले भी होंगे और जुल्म से महफूज रहने वाले भी बनेंगे। ये है गौसे आजम की सीरत। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस तो ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और हमें इसी गौसे आजम की सीरत पर चलना है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इन करामतों को जो हम सुन रहे हैं सिर्फ मजे लेने के लिए करामत नहीं है, क्योंकि ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब इन्हें ये शान मिली कैसे कि आप जिसकी तरफ हुक्म कर देते हैं वो आपकी ताबेदार हो जाती है। अगर आपकी निगाह कुत्ते पे पड़ जाए तो एक मरियल सा कुत्ता भी शेर को फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप जहां हुक्म कर देते हैं आपका वो कहा हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यही गौसे आजम है कि एक मर्तबा बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे, चौराहे पर दो शख्स खड़े आपस में झगड़ा कर रहे थे। और झगड़ा ये था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था। ईसाई कहता था मेरा पैगंबर अच्छे हैं, और मुसलमान कहता था मेरे नबी अच्छे हैं। ईसाई कहता था मेरे नबी अच्छे हैं, इसलिए कि मेरा ईसा मसीह मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, और तुम्हारे मोहम्मद अरबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया हो तो बताओ। मगर वो मुसलमान ऐसा था, उसे नबी पाक की सीरत का सही इल्म न था। ऐ मुसलमानों, नबी की सही सीरत पढ़ोगे तो न जाने कितने जानवरों के जवाब देने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। मगर तुमसे आज नबी के बारे में सवाल किया जाता है, तुम खामोश हो जाते हो। कुरान के बारे में सवाल है, खामोश हो जाते हो। न तुम अपने आलिमों के पास बैठते हो, न किताबों का मुताला करते हो। वो मुसलमान खामोश हो जाता है। ईसाई कहता है हमारे पैगंबर ने मुर्दे जिंदे किए हैं। क्या तुम्हारे नबी ने भी कोई मुर्दा जिंदा किया है? कि उसी असना में गौसे पाक का गुजर हो जाता है और वो आवाज गौसे पाक के कानों में पड़ जाती है। जैसे ही वो गुफ्तगू गौसे आजम के कानों में पड़ती है, गौसे पाक ठहर जाते हैं और ठहर के उसकी तरफ मुखातब होते हैं, और मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं ऐ ईसाई क्या कहता है, दोबारा बोल। वो ईसाई कहता है हमारे पैगंबर ईसा मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। क्या तुम्हारे मोहम्मद अरबी ने किसी मुर्दे को जिंदा किया है? अगर उस ईसाई में जरा सी भी समझ होती तो वो जान लेता अरे ईसा पैगंबर ने। ये शायर साहब आ गए हैं, बस मेरी बात आखिरी है और ये खत्म हो रही है। एक मर्तबा मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। ये खाना इनका स्वागत भी हो जाएगा, वेलकम भी हो जाएगा। कह दो या रसूल अल्लाह, ये इनका स्वागत हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस्लाम देखो, इस्लाम देखो, और इस्लाम का एक वली देखो, और ये वो वली है कि जिसकी विलायत के चर्चे सबसे पहले आपके आने से पहले वलियों ने किए हैं, रसूल कायनात ने किए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी कौनैन का ये वफादार गुलाम और अब्दुल कादिर जीलानी वलियों का सरदार है। ठहर जाता है और ठहर कर कहता है ईसाई बता तो सही क्या मामला है, क्या कहना चाहता है? ईसाई कहता है मेरे पैगंबर ने मुर्दों को जिंदा किया है। तुम्हारे पैगंबर ने मुर्दों को जिंदा किया हो तो बताओ। अब मैं कहना ये चाहता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पैगंबर ने, वो कहता है कि मुर्दों को जिंदा नहीं किया। अरे ईसाई, अगर तेरे अंदर जरा सी भी समझ होती तो तू जान लेता ईसा पैगंबर ने उनको जिंदा किया जिनमें रूह थी और फिर चली गई, रूह थी और फिर चली गई। हमारे पैगंबर की शान ये है, अरे जिन कंकरों में कभी रूह न थी उन कंकरों को हुक्म दे दिया तो वो बोलने लग गई। नई रूह पैदा करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और पुरानी रूह को वापस पलटा देना ये ईसा रूहुल्लाह। ये शान है मोहम्मद अरबी की। वैसे पाक फरमाते बता तेरे पैगंबर ने मुर्दों को जिंदा किया और तू मेरे पैगंबर की बात करता है, मेरे आका की बात करता है। अरे मैं तो अपने आका के गुलामों में से एक अदना सा गुलाम हूँ, नबी के गुलामों का एक गुलाम हूँ। चल कौन से मुर्दे को जिंदा कराएगा? ये अब्दुल कादिर उस मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा। सुभान अल्लाह। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी की। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे मिली? अल्लाह की इबादत से मिली। कैसे मिली? भूखे रह करके मिली। अल्लाह के लिए अब्दुल कादिर भूखे रहे, अल्लाह के लिए अब्दुल कादिर ने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ा, अल्लाह के लिए अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद का जीलान से सफर तय कर दिया है, सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया है अल्लाह की रजा के लिए। ये तमाम करामतें और तमाम मरातब
मरातिब अब्दुल कादिर जीलानी को मिल रहे हैं, मगर अब्दुल कादिर जीलानी भी तो कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। अब्दुल कादिर जीलानी अपने सफर की मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ रहे हैं, वापस वतन को नहीं पलटते हैं अल्लाह की रजा के लिए। अब्दुल कादिर जीलानी जंगलों में घास को खा रहे हैं, भूखे रहते हैं, मगर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं। अब मैं बात आगे न बढ़ा करके अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, बता कौन से मुर्दे को जिंदा कराएगा? यार इस्लामी भाइयों, वो ईसाई भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। अब ये दो तीन नहीं, अब तो एक के बाद दीगरे लोगों की भीड़ लग गई कि आज अब्दुल कादिर जीलानी किसी मुर्दे को जिंदा करेंगे। ईसाई के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद आप फरमाते बोल और रख दे किसी कब्र पे हाथ। अब्दुल कादिर जीलानी के कहने से ईसाई कब्र पे हाथ रखता है, कहा इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। वो कब्र का मुर्दा मर चुका था और वो इतनी पुरानी कब्र थी कि जब वो मरा था तो ईसा का कलमा पढ़ता था, ईसा का कलमा पढ़ता था। हमारे पैगंबर की आमद से पहले ही मर गया था, ईसा का उम्मती था मरने वाला। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने हाथ रखा, आवाज लगाई, ताकुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होता। अब वो मुर्दा सिर्फ उठकर ही खड़ा नहीं होता है, बल्कि जब मुर्दा उठता है तो मुर्दा पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी सिर्फ अब्दुल कादिर जीलानी ने मुर्दा ही जिंदा नहीं किया, बल्कि वो मुर्दा जो ईसा का कलमा पढ़ के मरा था उठा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा।